I'm Vijay Kumar Patel, PGT Chemistry, JNV Golaghat, Assam. Today we will discuss about coordination compounds for class 12 unit number 9, and in this chapter today we will see the crystal field theory and its applications. So without wasting time, let's come to the topic. First, about crystal field theory. So this theory was proposed to explain the different properties like color, magnetic properties, and also the structure of the complex. So according to this theory, metal and ligands, their bonds are considered as pure ionic, and the ligands are considered as the charge point. It means, in very simple words, metal and ligand, their bond is ionic bond. So this was the postulate of this crystal field theory. So here first we will see the spectrochemical series. So what is a spectrochemical series? A series in which ligands are arranged in increasing order of their field strength. Field strength, it means, in my previous video I have told you that some ligands are strong and some ligands are weak. So in which terms they are strong and weak? So we say them strong or weak in terms of their field strength. Okay, so about their power we will discuss in later. So see here, this is the series in which iodide, bromide, thiocyanide, chloride, sulfide, fluoride, hydroxide, oxalate, and different ions are given. So here see, this series, if you compare the field strength of iodide and bromide, so bromide, it has a strong field strength. Okay, means this one is a strong ligand as compared to iodide. So in this way, carbonyl, that is CO, so which is present in the last. So carbonyl, this is very strong ligand. So it's this one is very strong, and iodide is very weak ligand. So here see, this is the increasing order of field strength for different ligands. So here, what is the meaning of this field strength? So let's see. First we will see the structure of d orbitals, though we have studied in class 11, but here again we will see the structure of d orbitals. We have 5 d orbitals. Actually in d subcell we have 5 d orbitals. First is dxy, second is dyz, and third one is dzx or xz. So you see the arrangement of these orbitals. So in very simple way, see, if you see this structure, then in very simple way, dxy, it means the lobes of the orbitals, these lobes are present between the axes. Okay, between the axes. See here, what is the meaning of between the axis and what is the meaning of along the axis? So between axis means, if you see, these are the, this one is x and this one is y. Okay, so this is called the between the axis, and this one is called along the axis. Okay, so between the axis means between x and y, and along the axis means either along with a or with x or y or z. So these three orbitals, their orientation is in between the axis. Okay, so very simple. dxy, it means between xy and yz. If you see the structure, then the structure of this x and y, this will be like this. This one is x and this one is y. So between x and y, this one is x and y. Okay, this one is also x and y. So here, since the structure of d orbital, it is double dumbbell shape, so you can see here double dumbbell. First dumbbell between x and y, second dumbbell again between x and y. So this is the structure of dxy. Okay, then structure of dyz. So very simple. Now this one is y, this one is z. So between yz, and where is x? X is perpendicular to this axis. Okay, since we have 3 axes, so between axis, if the orbitals are present, then these are known as dxy, dyz, and dzx. Okay, next, along the axis. In this along the axis, the orbitals are dx square minus y square and dz square.
You can see here in dx square minus y square, the orbitals, these are present between along the axis. Along the axis means along this y axis. You can see this is the y. So along the y axis the orbitals are present, and along this x axis y orbitals are present. So these are along the axis. Okay, so very simple. See here, this one is along the axis, this one is again along the axis. So this is the structure of dx square minus y square, and last one dz square. So this is the structure of dz square, where z orbitals, you can see here, this one is along the z axis and around this axis. So these are the structures of d orbital. Now the question is, why we are studying here the structure of d orbitals? Because in crystal field theory it considers that the d orbitals, okay, 5 d orbitals, they undergo splitting in different sets of orbitals of different energies. So we have to see here the splitting of d orbital. Okay, that's why I'm saying here the structure is must. So first we will see the structure of here the splitting of d orbitals. So let's see. These are the 5 d orbitals: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. These orbitals are known as degenerate orbitals. What? We say them as degenerate orbitals because their energies are equal. Means the energies of all the 5 orbitals, these are equal. So when ligand approaches these orbitals, now why ligand is approaching? Because complex is to be formed. So complex is formed by the interaction of metal and ligand orbitals. So it means ligands, they are approaching towards metal. Okay, सिंपल सा इसको समझना है कि लिगेंड्स क्या करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे. अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगी और इसमें ऑर्बिटल्स के एक्सिस का क्या रोल है, जो हम उसमें बात कर रहे हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एक्स एंड डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स, तो इनका क्या रोल होगा. सो वेरी सिंपल देखना है हमको. पहले तो हो गया ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. अब इसको क्या करना है, हमको एवरेज एनर्जी मिलाना है. ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जैसे लिगेंड इसके साथ अप्रोच करेंगे, इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, एवरेज एनर्जी. और एवरेज एनर्जी के बाद फिर इनमें स्प्लिटिंग होगी. स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, तो ये इसकी हो गई एवरेज एनर्जी. आप ये ब्लैक लाइन देख सकते हैं, ये ब्लैक लाइन क्या है, इसकी एवरेज एनर्जी. इसमें स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, सो आउट ऑफ दिस 5 डी ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स ये इनकी एनर्जी कम हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी. और ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स. और जो 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो 2 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है. तो रीज़न ये है कि हम जब ऑक्टा, ये जो स्प्लिटिंग हम बात कर रहे हैं, ये स्प्लिटिंग अभी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में माय डियर स्टूडेंट्स, सी होगा क्या कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स इसमें जब आप मेटल और लिगेंड की पोजीशन देखेंगे, तो ये पोजीशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन होती है एक स्क्वायर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. मतलब ये होता है इसका स्ट्रक्चर. देखिए, सबसे पहले हम एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएंगे. ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कौन सा होगा, लाइक दिस. ये हो गया स्क्वायर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन. यहाँ पर होगा मेटल, यहाँ पर होगा लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स. ओके, अब इसमें देखना है हमको कि ऑर्बिट, इसमें एक्सिस का क्या रोल है. तो जब ये लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इनमें जो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये कहाँ पर हैं, ये अलोंग द एक्सिस है और ये बिटवीन द एक्सिस. तो जब हम कोई एक कंपाउंड देखेंगे जिसके स्ट्रक्चर में जब लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करेगा, तो ये लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेंगे, एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करेंगे. एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल के साथ इनका इंटरेक्शन होगा. तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. तो सिंपल सा इसको हम ये समझें कि किसी भी डी ऑर्बिटल, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, इसमें जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा. तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस में प्रेजेंट हैं, उनके और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा. इस इंटरेक्शन के कारण
लिगेंड जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब देखिए कैसे एनर्जी चेंज हो रही है। तो जब हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनकी बात करें, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा है, हम डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक्सिस, एक्स वाई जेड। इसमें अब हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये इसका स्ट्रक्चर कहाँ होगा, इस एक्सिस में। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गए डी के ऑर्बिटल्स, और जेड का ऑर्बिटल ये हो गया, और यहीं पर एक और हो गया। तो अब इसमें अब ये देखो आप कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, एक्सिस में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस हमारे पास सिर्फ दो ऑर्बिटल्स हैं, और दो ऑर्बिटल कौन कौन से, ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड की। तो लिगेंड आएगा तो किसी भी एक एक्सिस के थ्रू ही आएगा। तो या तो वो इस एक्सिस के थ्रू आएगा, एक्स के थ्रू आएगा, या तो फिर वाई से आएगा, या फिर जेड से आएगा। तो किसी भी एक्सिस से आए, सबसे पहले उसका इंटरेक्शन किससे होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से। तो जब इनका इंटरेक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी इंटरेक्शन होगा तो फिर एनर्जी में क्या होता है, चेंज हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से ये 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और बाकी 3 ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन इनके बीच में है। तो हम जब एवरेज एनर्जी की बात कर रहे थे, तो उस एवरेज एनर्जी में क्या होगा, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो नीचे आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो ऊपर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कितना चेंज आता है इसमें। तो इसमें चेंज आता है कि जब हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स ईजी ऑर्बिटल्स में चेंज आता है। तो अब हमको ये देखना है इसमें कि एक्चुअली ये जो 2/5 है, ये क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा। क्यों माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये हो जाएगा -2/5 डेल जीरो। ये डेल जीरो क्या है, ये है इसमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी हमको क्या देखना है कि यहाँ पर एनर्जी, एक डी ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3/5 मीन्स 0.6। ये एनर्जी है एक EG, और ये जो 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, और जो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4। ये इनकी एनर्जीज है। तो ये हो गया -0.4 और ये हो गया +0.6। तो एक ऑर्बिटल की है -0.4, सेकेंड ऑर्बिटल -0.4, थर्ड ऑर्बिटल -0.4। इसी प्रकार से जो 2 ऑर्बिटल हमारे पास है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी होगी +0.6, और डी जेड स्क्वायर इसकी भी एनर्जी होगी +0.6 डेल जीरो। ओके, अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट कि ये जो हमारे पास स्प्लिटिंग हुई है, तो इस स्प्लिटिंग में, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है अभी, ये स्प्लिटिंग होती है माइक्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग, यही इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग। मतलब ये कि ये हमारे पास डी ऑर्बिटल तो वैसे भी इतने छोटे छोटे हैं, इनकी और आगे स्प्लिटिंग होगी तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट में जाएंगे। तो जब स्प्लिटिंग के बाद जो 2 हमारे पास सेट बन रहे हैं, इन 2 सेट में फर्स्ट ये जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, इनको हम कहते हैं T2G। ये ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, T2G ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर हैं इनका नाम होगा EG ऑर्बिटल्स। ओके, सो ये 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इन तीनों का नाम है T2G ऑर्बिटल्स, और इन दोनों का नाम है EG ऑर्बिटल्स। क्यों हम इनको T2G और EG कह रहे हैं, क्योंकि यदि हमने सिर्फ डी ऑर्बिटल कहा तो कौन सा डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है, तो इनको एक नया नाम दिया जाता है। वो नाम कौन सा है, T2G और EG। सो चलिए ये क्लियर हो गया हमारे पास कि EG की एनर्जी ज़्यादा होगी और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी। T2G ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं। ये इस टाइप से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी जब मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट ये है
आफ्टर स्प्लिटिंग हमें कैलकुलेट करना है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, ये सिंपल सा है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? सो वेरी सिंपल, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between the two sets of microscopic d orbitals, these are T2g and EG, is called crystal field stabilization energy। अब यहां पर हम बात करेंगे, तो देखो अब इसमें स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है और हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होने से क्या बनाएगा, ये 2 सेट बनाएंगे, फर्स्ट इज EG सेट एंड सेकेंड इज T2G सेट। T2G सेट में 3 ऑर्बिटल्स हैं और EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये देखो, ये इनकी हो गई एवरेज एनर्जी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस होता है CFSE। ठीक है, तो CFSE की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब स्प्लिटिंग उसमें उतनी ज़्यादा होगी, और CFSE की वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब स्प्लिटिंग उसमें उतनी कम होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, अब वीक लिगेंड की बात करें कि वीक लिगेंड में क्या केस होगा, तो यहाँ पर ये एवरेज एनर्जी ही है, पर वीक लिगेंड में क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये इतनी ही स्प्लिटिंग हो पाती है इसमें। तो आप देख सकते हो आप इसमें डिफरेंस कितना आएगा, एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब वीक लिगेंड के लिए CFSE की वैल्यू कम होगी और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक d ऑर्बिटल्स, मीन्स डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG। अब हम CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी स्टडी करेंगे। सो सी formula for CFSE, this formula is -0.4x plus 0.6y। क्यों इसको हमने इतना कहा है, तो x और y क्या है एक्चुअली, x and y these are the number of electrons in x, these are the number of electrons in T2G orbital, and y these are the number of electrons in EG orbital। so very simple, in very simple way ये देखना है कि सपोज हमारे पास ये स्प्लिटिंग हो गई, ये हो गया EG और ये हो गया T2G। अब सपोज हमारे पास EG में, ये EG में 1 इलेक्ट्रॉन है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए CFSE कितनी होगी, तो CFSE का सीधा सा कंसेप्ट इसमें आएगा, CFSE मीन्स -0.4 इंटू एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, ये हो गया -0.4 एक्स। और EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1, सो 0.6 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1.2 प्लस 0.6, सो नेट रिजल्ट हमको मिलेगा 0.6। ये होगी CFSE। तो सिंपल, हमको अब इसमें ओवरऑल क्या देखना है कि हमें सिर्फ ये कन्फिग्रेशन बनाना है। यदि ये कन्फिग्रेशन हमने बना लिया तो इसके बाद फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ CFSE। तो ये कैलकुलेशन, अब देखो हमने स्प्लिटिंग की बात की है, लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। अब इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनका काम क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब इनकी पावर ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करा देते हैं। वीक लिगेंड्स में इतनी पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सकें। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे CFSE का, ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों के लिए करेंगे। फर्स्ट, मेटल आयन कन्फिग्रेशन। मेटल आयन कन्फिग्रेशन से मतलब ये है, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है ये कंपाउंड है CO NH3 एंड 3+। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन कन्फिग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। मेटल आयन सबसे पहले जो चेक करो कि मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। सो कोबाल्ट के लिए सपोज दिस वन इज X NH3,
तो NH3 कितना होगा, NH3 में नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6 बट चार्ज ऑन NH3 दिस वन इज 0, इट इज इक्वल टू +3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। x की वैल्यू +3 मतलब ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 का मतलब क्या है, +3 का मतलब है CO+3। तो अब इसमें हम कन्फिग्रेशन निकालेंगे, किसका कन्फिग्रेशन निकालना है, CO+3 का। तो ये कन्फिग्रेशन होगा, फर्स्ट CO, एटॉमिक नंबर इज 27, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड सो ऑन, और लास्ट में कन्फिग्रेशन हमको मिलेगा 4s2 3d7। ठीक है, कितना मिलेगा, 4s2 3d7। और इसी को यदि हम रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा 3d7 एंड 4s2। हमें क्या बनाना है, अब इसमें हमें बनाना है CO+3। तो +3 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकालेंगे। तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा अब, 3d6 4s0। ठीक है, तो ये देखना है आपको कि D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ मेटल आयन कन्फिग्रेशन, मेटल आयन कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे D1 कॉम्प्लेक्स, D2 कॉम्प्लेक्स, D3 कॉम्प्लेक्स। सो D1 D2 D3 क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये हो गया D6। तो हम D1 से स्टार्ट करेंगे D10 तक, सारे के सारे जो हमारे पास आयन्स हैं उन आयन्स के लिए हम CFSE कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी फॉर मेटल आयन कन्फिग्रेशन, सेकेंड लो स्पिन। लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने से स्पिन की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर उसके बाद देखना है CFSE लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर हाई स्पिन मतलब वीक लिगेंड फील्ड, इसके लिए हमको CFSE कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे D1 का। तो D1 D ऑर्बिटल ये आपको दिख रहा है, स्प्लिटिंग हमने D ऑर्बिटल का किया हुआ है। स्प्लिटिंग कितना हो गया, स्प्लिटिंग में हमने देखा EG और T2G सेट बनते हैं। तो कौन कौन से सेट बनेंगे, EG और T2G। EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं, dx² - y² एंड dz², और T2G में 3 ऑर्बिटल्स, dxy dyz dzx। अब आप देखिए D1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है हमको, D1 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे हम, किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, T2G में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो ये आ गया T2G में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए CFSE कितना होगा, CFSE का फॉर्मूला है 1 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल। तो एक T2G ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी है -0.4, और T2G में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 × 0.6। ओके, टोटल कितना आएगा, -0.4। ये हो गया CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D1 मेटल आयन। तो लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए CFSE क्या होगी, -0.4। अब हम देखते हैं वीक लिगेंड के लिए। तो वीक लिगेंड के लिए फिर से हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे। D1 कन्फिग्रेशन मतलब इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो CFSE की वैल्यू फिर से सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम देखें कि चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और चाहे वीक लिगेंड हो, दोनों के लिए CFSE इक्वल होती है। किसके लिए, D1 कन्फिग्रेशन के लिए। सो D1 कन्फिग्रेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और वीक लिगेंड से भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। D2 कन्फिग्रेशन के लिए क्या होगा, तो D2 में आप देखिए अब EG T2G इनको हम बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बनाना है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है हमको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया। CFSE का कैलकुलेशन कैसे होगा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 इंटू एनर्जी ऑफ 1 T2G ऑर्बिटल, दिस इज -0.4। EG में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, -0.8। अब हम वीक लिगेंड के लिए देखें, तो वीक लिगेंड में भी सेम कंडीशन होगा, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि D1 और D2 इन कॉम्प्लेक्सेस में वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों के लिए एनर्जी सेम होती है, तो दोनों ही अपने अपने कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हम CFT को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी
इसको समझने का पर्पस क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट, ये तो फिक्स है कि कोबाल्ट जो है वो +3 CO+3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये CO3+ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या वीक लिगेंड के साथ। तो हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और इसलिए हम CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक के केस में तो दोनों ही वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जीज सेम आई हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट D3। D3 के लिए क्या होगा, फिर से EgT2G सेट, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिलअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, तो इसकी एनर्जी आएगी -1.2। फिर वीक लिगेंड, तो इसमें भी 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कहीं भी पेयरिंग की समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, पेयरिंग की समस्या कहाँ आएगी, D4 में। कैसे आएगी D4 में, तो ये देखिए Eg और T2G, यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने एक एक करके भर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो 4th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा या T2G में जाएगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, 4th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Eg में या T2G में। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब वो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। ठीक है, Eg में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी 4 × -0.4, सो -1.6। ये हो गई एनर्जी D4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अब D4 कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के लिए एनर्जी क्या होगी, तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिलअप कर दिया है इसमें, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड मतलब वो पेयरिंग नहीं करा सकता, पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3 × -0.4, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, Eg सेट में है, तो इसलिए इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.6। तो अब यहाँ आप ये कंपेयर करें कि जो हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्स है, ये D4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाए कॉम्प्लेक्स बनाएगा या वीक लिगेंड के साथ। तो बहुत सिंपल से तरीके से हम इसको देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में एनर्जी है -1.6 और वीक लिगेंड के केस में एनर्जी है -0.6। तो दोनों में स्टेबल कौन होगा, तो एनर्जी का बहुत सिंपल सा रिलेशन है, एनर्जी जितनी कम होगी कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होता है, मीन्स लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। सो विच वन हैज़ लेस एनर्जी, -1.6, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है कि यदि हमने D4 कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये D4 कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड के साथ स्टेबल होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, तो ये स्टेबल होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। सो D4 किसको प्रीफर करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। फिर इसी तरीके से हम देखें D5 और D6 के लिए, D5 में भी सेम कंडीशन है, Eg T2G, Eg के लिए हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे, T2G के लिए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने फिलअप कर दिया। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिंस दिस वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये भी पेयरिंग करेगा। तो इस टाइप से हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, T2G में। तो इसके लिए CFSE कितना हो जाएगा, 5 × -0.4, क्योंकि T2G की एनर्जी कितनी है, -0.4। सो 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए इसका 0 × 0.6 टोटल एनर्जी हो जाएगी -2.0। अब हम वीक लिगेंड के लिए देखते हैं। सो पहले Eg ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स बनाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा सकता, पेयरिंग नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, Eg में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हमें अब कैलकुलेट करना है CFSE कितना होगा, 3 × -0.4 एंड 2 × 0.6, तो नेट आंसर मिलेगा 0। अब आप कंपेयर करो दोनों में एनर्जी किसकी कम है,
अगेन एनर्जी कम किसके लिए आ रही है, D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए एनर्जी कम है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वीक लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम D6। सो D6 में अगेन सेम प्रोसीजर, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, एनर्जी कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 0.4, तो टोटल आंसर मिलेगा हमको -2.4। और वीक लिगेंड के केस में क्या होगा अब, तो वीक लिगेंड में आप देखेंगे कितना होगा, 1 2 3 रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा सकता, वो EG में जाएगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन EG में, 5th इलेक्ट्रॉन EG में, और 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो पेयरिंग करेगा। तो इस टाइप से इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, नेट आंसर इज -0.4। तो आप फिर से देखें, आप एनर्जी किसकी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CFSE जितनी कम हो रही है, कंपाउंड उतना स्टेबल हो गया। सो D4 D5 D6 ये तीनों जो हमारे पास आयन है, ये स्टेबल कब बनेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, EG T2G 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th इलेक्ट्रॉन इन EG। तो इसके लिए एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी एनर्जी। नेक्स्ट वीक लिगेंड के लिए क्या होगा, तो वीक लिगेंड में 1 2 3 पेयरिंग नहीं होगी, 4 5 रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो नीचे आएंगी। अब इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, आंसर इज -0.8। अभी भी D7 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एनर्जी कम है और वीक लिगेंड के लिए एनर्जी ज़्यादा है, तो अभी भी D7 किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। अब हम देखते हैं D8 कन्फिगरेशन। सो D8 में होगा EG T2G, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी एनर्जी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर वीक लिगेंड के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये हो गया इसका कन्फिगरेशन। तो इसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब इन दोनों में देखो आप, दोनों की एनर्जी क्या हो रही है D8 कन्फिगरेशन में, -1.2 -1.2। इसका मतलब D8 कॉम्प्लेक्स फिर से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया जिसमें वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इनमें एनर्जीज में डिफरेंस नहीं है। तो एनर्जी में डिफरेंस कहाँ आया था, एनर्जी में डिफरेंस आया था सिर्फ D4 D5 D6 D7, ये सिर्फ 4 ऐसे कन्फिगरेशन है जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर D9 के लिए देखें अब हम केस, 3 4 5 ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये कन्फिगरेशन होगा वीक लिगेंड के केस में। तो वीक लिगेंड में भी यही होगा कन्फिगरेशन। तो दोनों में आप देख सकते हो कन्फिगरेशन सेम है, तो जब कन्फिगरेशन सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी, तो ये एनर्जी दोनों की सेम हो गई। अगेन D9 वीक लिगेंड के साथ भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रॉन्ग के साथ भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और D10 में, तो D10 में ये कन्फिगरेशन होगा इसका, ये इसकी टोटल एनर्जी। तो यहाँ से अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड ये भी एक चार्ज पॉइंट है, मे बी इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, मे बी इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ओके। सो ये एक चार्ज स्पीसीज है, मेनली ये निगेटिव होता है। और मेटल आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड। जब आयोनिक कंपाउंड बनेगा तो इसमें हमारे पास D1 से D10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, क्योंकि किसी में D में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, D में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अलग अलग आयंस के लिए हमने CFSE कैलकुलेट किया है। CFSE स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए और वीक लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कंसेप्ट है सिंपल सा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब पहले पेयरिंग होगी T2G में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड में हमको सबको पहले पार्शियली फिल करना है। जब 5 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मीन्स T2G और EG में जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर इसके बाद हम पेयरिंग कराएंगे।
तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से फिर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा? रिजल्ट ये है, रिजल्ट इसमें ये मिलेगा हमको, जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि हम CFT के थ्रू कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन्स these are in T2G orbital means lower energy orbital, it makes complex stable, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? लोअर एनर्जी में। लोअर एनर्जी में जाएगा मतलब कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होगी, तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन TEG ऑर्बिटल मीन्स हाई एनर्जी ऑर्बिटल, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स को कैसा करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन T2G में और कितने EG में है? तो इसका सिंपल सा हो गया कंसेप्ट, T2G में इलेक्ट्रॉन गया तो वो स्टेबल करेगा, EG में इलेक्ट्रॉन गया तो अनस्टेबल करेगा। फिर दोनों का जो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। हम CFSE कैलकुलेट करेंगे मीन्स T2G माइनस EG, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है CFSE। स्मॉलर वैल्यू ऑफ CFSE मतलब जितना ज़्यादा निगेटिव होगा CFSE, कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होगा। फिर इसके बाद फॉर D1, D2, D3, D8, D9, D10 देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे बाय विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। आप कन्फिग्रेशन देखेंगे तो D1 इसमें वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों में कन्फिग्रेशन एक ही है, इसमें कन्फिग्रेशन में कोई अलग अलग ऑप्शन नहीं है। लेकिन D4 में दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से मेटल आयंस हैं जिसमें कन्फिग्रेशन में चेंजेस हो सकते हैं? तो D4, D5, D6, D7 सिर्फ ये 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है। सो हियर फॉर दीज 4 complexes हैज लोअर CFSE अंडर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, हैंस दे आर मोर स्टेबल इन लो स्पिन स्टेट। मतलब क्या? मतलब ये है कि हमारे पास जो 4 D आयन हैं मीन्स D4, D5, D6, D7, ऐसा यदि कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब उसकी स्पिन कैसी होगी? स्पिन उसकी लो होगी। लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह सकते हैं इसको हम, हाई स्पिन और वीक लिगेंड कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन में, टू प्रिडिक्ट वेदर द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर और नॉट, CFSE इज कंपेयर्ड विद पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल। मतलब ये है कि अब देखो, हमने जब पेयरिंग की बात की थी तो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स पेयर करेंगे, बनाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है उनकी पेयरिंग एनर्जी और CFSE के साथ। तो हमको कंपेयर करना है CFSE और P को। पेयरिंग एनर्जी फिक्स है, अब हमको सिर्फ क्या चेक करना है? उसकी CFSE। तो पेयरिंग एनर्जी मतलब इसको सिंपल सा आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अब हम CFSE और पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर करते हैं। इफ लैम्बडा 0 मीन्स CFSE, इफ CFSE इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसकी स्टेटमेंट समझना है इसको, कि जो कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी है, सपोज कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी है 10 जूल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी कितना है? सपोज दिस डेल 0, दिस वन इज इक्वल टू 10 जूल, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है? पेयरिंग एनर्जी है 20 जूल। तो पेयर बनाने के लिए 20 एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी कितना है? 10 जूल एनर्जी है। तो क्या कॉम्प्लेक्स पेयर कर पाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेयर होने के लिए 20 जूल की एनर्जी चाहिए, पर कॉम्प्लेक्स के पास सिर्फ 10 जूल है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यदि पेयर हो जाता, ये हमने जो EG और T2G बनाया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा या नहीं? तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, CFSE कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएगा, वो EG में चला जाएगा। जब EG में जाएगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो ये हो गया कन्फिग्रेशन, T2G 3 और EG, दिस वन इज EG 1 नॉट 2, दिस वन इज EG 1।
ओके, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कन्फिगरेशन मिलेगा. सो वी विल गेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन क्यों? इसके लिए आप देखो हमारे पास जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होगा, इसके लिए स्पिन हो गई हाफ, इसके लिए स्पिन है हाफ, इसके लिए भी स्पिन है हाफ, इसके लिए भी स्पिन है हाफ. टोटल स्पिन कितनी हो गई? 2. तो ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो इफ CFS इस स्टेटमेंट को याद रखना. इफ CFS is less than pairing energy, so fourth electron will enter in Eg orbital. Okay, next is if CFS is more than P, then fourth electron will enter into T2G orbital. Okay, fourth electron कहाँ एंटर करेगा? T2G orbital में. कैसे एंटर करेगा? तो फिर से इसको हम देखते हैं. ये हो गया हमारे पास Eg, ये हो गया T2G. 1 2 3 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अब पेयरिंग के लिए फिर से वही बात आती है कि जो CFSE की वैल्यू है ये हो गई 10 जूल पर पेयरिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू है सिर्फ 5 जूल. तो पेयर बनाने के लिए इसको 5 जूल चाहिए. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के पास 10 जूल है, मतलब जितनी पेयरिंग एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी है, तो पेयरिंग हो जाएगी. फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? T2G में. तो T2G का कन्फिगरेशन क्या हो गया? T2G, इसका कन्फिगरेशन हो गया T2G4 और Eg का कन्फिगरेशन क्या हो गया? Eg0. तो ये कन्फिगरेशन मिलेगा T2G4 Eg0. सो इस कंडीशन में स्पिन कैसी होगी? लो स्पिन होगी. लो स्पिन क्यों? क्योंकि हमने अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो जाएगा प्लस हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा माइनस हाफ, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ. तो टोटल ये दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा सिर्फ 1. तो इसके लिए स्पिन कितना आ गया? 1 आ गया. सो लो स्पिन हो गई. तो इसलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो स्पिन की वैल्यू क्या हो जाती है? लो स्पिन हो जाती है. तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है. इन्हीं 2 स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and subscribe, and if you have any problem you can contact to my personal WhatsApp number. Thank you.